I invite Ms. Neha Sinha, a conservation biologist and an acclaimed author with over a decade of wildlife conservation work under her belt, trained in conservation at Oxford University and in literature at St. Stephen's College in Delhi. She is the author of Wild and Willful Tales of 15 Iconic Indian Species, published in 2011. She has received awards for both her conservation work as well as her writing, and is often found wandering in places looking for birds and the perfect words to describe the birds. Can we have a huge round of applause for Ms. Neha Sinha? And in conversation of the book Wild Capital, Discovering Nature in Delhi, we have Dr. Amna Mirza. Can we have Dr. Amna Mirza on stage, please? Academician, author and public speaker, and associate professor in the Department of Political Science at Shyama Prasad Mukherjee College for Women, University of Delhi. Thank you. Please take the conversation forward. Check. धन्यवाद. Thank you so much. So पहले ये क्योंकि conversation है, it's going to be like a dialogue. To set the context, मेरी आवाज़ आ रही है आप सब तक? आ रही है? थोड़ी सी तालियां हो सकती हैं, सत्र की शुरुआत है. धन्यवाद. दिल्ली साहित्य महोत्सव, Delhi Literature Festival में it's going to be a very interesting discussion now. The Wild Capital, Discovering Nature in Delhi. और ये किताब इसलिए विशेष हो जाती है क्योंकि जब आप एक शहर में साहित्य की बात कर रहे हैं, उसी शहर का जो पर्यावरण है उसकी गहराई को हम आज देखने वाले हैं. We are here at Delhi celebrating words and beyond with all the literary enthusiasts, but we'll be specifically, this work becomes important because we'll be specifically looking at environment around us in a beautiful literary tenor. किताब की जो लेखिका है वो बहुत ही मेरे दिल के प्रिय हैं. शी इज़ वेरी डियर टू माई हार्ट बिकॉज हम दोनों ने दिल्ली विश्वविद्यालय के ही सेंट स्टीफेंस कॉलेज में हम लोग दोनों ने बैचलर्स की पढ़ाई साथ करी थी. लेडीज एंड जेंटलमैन, शी इज़ अ वंडरफुल नेचर राइटर, अ कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट, recipient of the prestigious INLACS Fellowship Award, and of course her work pertaining to ecology, nature conservation has been quoted, cited at various national and international forums. तालियों सहित आइए with a huge applause. Let's welcome Neha Sinha ji. Neha, thank you so much. Thank you. Greetings, kudos to all the wonderful work, and welcome to Delhi Literature Festival. Neha, again I'll be bilingual, but you can feel free to address in whichever tenor language that you want to address. ये किताब बड़ी गहराई की है क्योंकि ये बात कर रही है कि आपने रिज में कैसे चीज़ों को समझा, आपने किस तरह धौला कुआं को गहराई से देखा, आपने दिल्ली से जुड़े हुए पशु पक्षी तक को भी नापा है इस किताब में. दिस बुक is it has a beautiful collection of various flora, fauna, ecology. On that tenor, Neha, let me open up. You have a global presence too. What made Delhi and its ecology dear to your heart for writing? What was the motivation to delve into Delhi's ecology for writing the book? Neha, please. Thank you, Amna. Such a pleasure to be with you. मैं 20 साल बाद आमना को देख रही हूँ. Even though हम रोज़ साथ में होते थे कॉलेज में, दिल्ली को हमेशा गाली मिलती है सबसे प्रदूषित, यहाँ पे पॉलिटिकल कैपिटल है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट रहता है, पार्किंग के लिए लोग लड़ाई करते हैं. मगर दिल्ली में और बहुत कुछ भी है. और क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और क्योंकि यहाँ पे मैंने पढ़ाई की है, आई वॉज बॉर्न हियर, आई वॉन्टेड टू सी व्हाट मेक्स दिल्ली स्पेशल. दिल्ली को एक बहुत अनोखा दर्जा मिलता है बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल कैपिटल, और एक अनोखा दर्जा मिलता है also for the negative things, but there are so many positive things in Delhi. सबसे पहली बात, दुनिया का सबसे पुराना माउंटेन रेंज अरावलीज दिल्ली में है. दिल्ली का जो रिज फॉरेस्ट है जिसमें अभी भी जैकल्स और लेपर्ड्स रहते हैं, वहाँ पे काफ़ी लोग जाते हैं हर रोज़. और द फैक्ट दैट हम यहाँ रह सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत शहर में जहाँ पे हम सब ने या तो पढ़ाई की है या हमारा काम
यहाँ पर है, our families are here, our careers are here. The city has given us so much, and I feel that we are very ungrateful sometimes. क्योंकि दिल्ली के बारे में कोई भी बात करे तो हमेशा नेगेटिव तौर से ही बात होती है. तो मैं चाहती थी थोड़ा गहराई से देखूं इकोलॉजी क्या है यहाँ का, और यहाँ पे क्या कुछ और भी है other than the people, other than the politics. And I found amazing things. दिल्ली में 400 से ज़्यादा प्रजाति के पक्षी हैं. More than 400 bird species come to Delhi. हिमालय से चिड़िया यहाँ आती है, रशिया, चाइना, यूरोप से चिड़िया यहाँ आती है. And Delhi has a wide range of trees and shrubs and vines etc. ये दिल्ली का पेड़ है, सेमल यहाँ पे खड़ा है. And कुछ दिनों में इसमें लाल फूल होंगे जो सब लोग बहुत देखते हैं जब सेमल जब फ्लावर करता है, मीनिंग spring is here. So every year during spring the semal flowers, in summer the amaltas flowers and the palash flowers. And you know, when people come from outside, they are amazed that Delhi has big roads and big trees. And I always say that this is the character of the city. The fact that we all live here, we found our lives here, but also the trees, the hills, and even the Yamuna Nadi. So जब मेरी माँ छोटी बच्ची थी वो यमुना में तैरती थी और एक जनरेशन में वो ख़त्म हो गया. तो एक बहुत कुछ है दिल्ली में जिसको हमें बचाना भी है. तो ये किताब एक काइंड ऑफ प्रेयर है कि हम बचाए भी जो हमारे पास है. अगर हमें पता होगा कि क्या है तभी हम उसको बचा सकते हैं. तो दिल्ली में एक्चुअली 2 नदियाँ हैं. एक तो यमुना नदी है और दूसरी है साहिबी नदी जिसको हम नजफगढ़ नाला कहते हैं. और मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ टाइम में नाला उसको हम ना कहें, नाला एक नदी बन जाए फिर से. मैं ये देखना चाहती हूँ, बोथ फॉर यमुना नदी एंड साहिबी नदी. और तो ये दिस बुक इज़ एन एफर्ट टू शो ऑल ऑफ दिस एंड टू से कि हमारे पास अभी भी बहुत कुछ है, इसको हम बचा के रखें. ब्यूटीफुल. तभी कहा जाता है दिल्ली दिल वालों की है. यहाँ पर आम जनता के लिए नहीं, आम इंसान के लिए नहीं, पशु पक्षी उससे जो अन्य जीव भी जुड़े हैं उनके लिए सब कुछ खास है. लेकिन ज़रूरी ये है कि इस आज वर्तमान में ये जो हमारी प्रकृति है इसको हमें अपने साथ संजोना है. नेहा, शहरों पे किताबें कई लिखी गई हैं. सिटीज़ हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन वेरियस फॉर्मेट्स. सिटीज़ हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन रोमांस. सिटीज़ हैव बीन एक्सप्लोर्ड इन वेरियस अदर कॉन्टेक्स्ट टू. व्हेन यू लुक एट दिल्ली, दिल्ली जो दिल वालों की है, दिल्ली जहाँ पर हर तरह की तहजीब, हर तरह की सभ्यता का एक समन्वय है. व्हेन यू लुक एट दिल्ली थ्रू द लेंस ऑफ फ्लोरा एंड फौना, प्लीज़ हेल्प मी अंडरस्टैंड द प्रोसेस. How was it as a writer to delve into it? It must be very interesting because in this book, you know, Neha took 10 years to write this book. I mean, if I'm not wrong, 10 years, 10 वर्ष लगे आपको इस किताब को लिखने में. और इस किताब में हर तरीके से आपने हर एक्सपीरियंस को बड़ी ईमानदारी से बताया है. भृगु से आपका संवाद, पेड़ को आपने किस तरह देखा है, फॉरगॉटन ट्रीज, फ्लोरा, फौना. एक लेखक के रूप में क्या चुनौतियाँ रही होंगी इस प्रोसेस को, इस दास्तां को, या इस दिल के संवाद या दर्द को लिखने में? आई थिंक इस किताब की शुरुआत हुई इस बात से कि बहुत चीज़ें अब नहीं हैं जो पहले हुआ करती थी. तो जब मैं बहुत छोटी थी मुझे याद है मॉनसून में जुगनू दिखा करते थे, फायरफ्लाइज. एंड एज आई ग्रू ओल्डर आई यूज्ड टू थिंक क्या कभी मैंने जुगनू देखा था दिल्ली में. मुझे याद नहीं आ रहा था कि देखा था कि नहीं, क्योंकि वो दिख नहीं रही थी. और मैंने अपनी मम्मी से पूछा कि क्या आप जुगनू देखते थे. तो मम्मी ने कहा हाँ, हर मॉनसून में लॉन्स में जुगनू हुआ करते थे. तो मुझे लगा क्या जुगनू अभी भी हैं दिल्ली में, क्या मैं इनको ढूंढ सकती हूँ. एंड ऐसे करके मैंने शुरुआत की ढूंढना पुरानी चीज़ें जो अब नहीं है, जैसे कि वल्चर्स, एक जटायु जो पक्षी है वो चली गई है अभी. गोरैया, द हाउस स्पैरो, वो भी बहुत कम हो गई है अभी भी, बट इट हैज़ गॉन डाउन. एंड ऑल्सो आई थिंक जस्ट द फैक्ट दैट हम जब छोटे थे हमारे घर के पास पानी जल का स्रोत होता था, कोई छोटा सा झील होता था, लोग वहाँ बैठते थे. और धीरे धीरे सब बदलता रहता है क्योंकि ये शहर है. पर मैं ये मानती हूँ कि शहर को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि प्रकृति वहाँ हो.
कि शहर से ज़्यादा कोई ऐसी जगह नहीं है जिसको प्रकृति चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कंट्री साइड है, जहाँ पे फॉरेस्ट है, दे डोंट नीड नेचर एज मच एज सिटीज़ डू, बिकॉज देर आर सो मैनी ऑफ अस इन सिटीज़. वी आर सो डेंसली पैक्ड टुगेदर दैट वी नीड दैट रिवर, वी नीड दैट फॉरेस्ट, वी नीड द रिज. सो आई स्टार्टेड 10 years ago just by observing. बर्ड वॉचिंग करती थी मैं सुबह उठ के, और मैं सेमल के पेड़ को देखती थी, और मैं हाउस स्पैरो ढूंढती थी कहाँ मिलती है हाउस स्पैरो. अभी भी है, कुछ कुछ ऐसे कॉलोनीज़ में है जहाँ पे छोटे छोटे हेजेस हैं, जैसे कि द्वारका में मिलेगा, वसंत कुंज में मिलेगा. जहाँ जहाँ बुगनवलिया का हेज है वहाँ पे आपको हाउस स्पैरो मिलेगा. वल्चर जा चुका है सैडली. पर मैं लोगों से बात करना शुरू किया कि आपको क्या याद है आपके बचपन से, कौन से वो शब्द हैं जो आप इस्तेमाल करते थे अब नहीं इस्तेमाल करते हो. जैसे कि कुछ फल थे जो हमारे माँ बाप खाते थे, जंगल जलेबी, फालसा, खिरनी, ये सारे फल अब नहीं मिलते हैं. और मैं चाहती हूँ कि लोग इन फलों को, जो इंडियन प्लांट्स, इंडियन फ्रूट्स हैं, इनको फिर से याद करें. एवोकाडोज आर ग्रेट, बट आई वुड लव टू सी फालसा अगेन ऑन द टेबल. It's there in a much diminished capacity, ma'am. Earlier it was found much more. Today you ask a child what are the fruits you eat. There'll be no falsa, there'll be no kidney, there'll be no jungle jalebi. And I think that's a problem there. Yeah. वेल नेहा, उसी के साथ थोड़ा अब जेनेरिक में भी जाएंगे. इस किताब में आपने फाउंड स्पेसेस, फॉरगॉटन फॉरेस्ट, कई आपने बातें लिखी हैं, क्योंकि निस्संदेह जब हम पर्यावरण की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, दीज आर जस्ट नॉट टेक्स्ट बुक वर्ड्स. क्योंकि पहले सर्दियाँ हो, जैसे मानसून होता था, वो पूरे जून के समय चलता था. अब अगर बारिश हो रही है तो या तो वो बहुत ज़्यादा हो रही है या कुछ ही स्पेल में कुछ ज़्यादा हो रही है. नो डाउट क्लाइमेट चेंज, इकोलॉजिकल इश्यूज, वी आर grappling with it. Neha, as a conservation specialist, somebody who is devoted to the cause of ecology, and I really vouch for that because me and Neha, we both were part of the Wildlife Society long back. You know, the pledge towards the solidarity towards environment ranges that back. But Neha, as a writer, as an activist, somebody who really feels for the cause, do you think that lot more needs to be done? केवल हर वर्ष 5 जून को हमें पर्यावरण दिवस का याद होता है, केवल हर वर्ष 20 अप्रैल को हमें अर्थ डे का याद होता है. क्या हमें पर्यावरण संरक्षण की जो प्रयास है उसमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है अब? देखिए, इस साल हिमालयस में बर्फ़ नहीं पड़ी. बस एक बार बर्फ़ पड़ी है, और ये बहुत बहुत बड़ा वार्निंग है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप्स हैं जो बर्फ़ पे डिपेंड करते हैं, बहुत लोग हैं जो डिपेंड करते हैं, टूरिज़्म डिपेंड करता है बर्फ़ पे. तो डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज इज़ हैपनिंग. एंड दिल्ली में देखिए, पहले कूलर होते थे, अब एसी होते हैं. कूलर जब होता था तो कूलर में जो खस या जो मैट होता था उसमें चिड़िया आती थी, उसको लेकर घोंसला बनाती थी. अब कूलर भी नहीं है और वो चिड़िया भी नहीं है. राइट नाउ वी हैव एसीज एंड द विंडो नेवर ओपन्स. अर्लियर द विंडो यूज्ड टू बी ओपन. राइट नाउ यू कांट लिव विदाउट एन एसी, इट्स दैट हॉट. सो वी नीड what we call in English climate adaptation. हम कैसे adapt करें to the climate? So climate adaptation can happen through nature. Nature based solution जिसको हम कहते हैं, जैसे कि हम ऐसी वनस्पति लगाएं जो भारतीय है. ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम फॉरेन स्पीशीज़ लगाना बंद करें, क्योंकि फॉरेन स्पीशीज़ को पानी ज़्यादा चाहिए, खाद ज़्यादा चाहिए, अटेंशन ज़्यादा चाहिए. बट हमें ज़रूरत है कि हम दिल्ली के पेड़ पौधे, जैसे कि सेमल हुआ, जैसे कि ढाऊ एक और पेड़ होता है वो हुआ, पीलू हुआ, जाल हुआ, ये पुराने पेड़ जो बेसिकली डेजर्ट में रह सकते हैं, 50 डिग्री सेंटीग्रेड उनके लिए ज़्यादा नहीं है. वी नीड टू प्लांट दिस काइंड ऑफ ट्रीज़. वी नीड टू प्लांट वनस्पति विच इज़ फ्रॉम दिल्ली, जैसे कि वज्रदंती हुआ, या ऐसे बहुत इंडियन प्लांट्स हैं. वी नीड टू प्लांट देम. एंड वी ऑल्सो नीड वेटलैंड्स अगेन. देखिए, दिल्ली में जहाँ जहाँ वेटलैंड्स होते थे, दे गॉट टेकन ओवर. सो रेस्टोरेशन इज़ द नीड ऑफ द आवर. एंड ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हो रहा है. बहुत बायोडाइवर्सिटी पार्क्स बने हैं दिल्ली में. एक है वज़ीराबाद में, एक है वसंत कुंज में, एक है असीटा में ITO के पास. ऐसे हमें और बहुत बायोडाइवर्सिटी पार्क्स की ज़रूरत है, क्योंकि जब बहुत बड़ा तूफ़ान आता है या बहुत बारिश होती है, दे आर एबल टू एब्जॉर्ब द वर्स्ट इफ़ेक्ट्स. एंड जैसे यमुना नदी मैंने बताया, साहिबी नदी, पूरे बैंक्स को बायोडाइवर्सिटी पार्क बना देना चाहिए.
चाहिए कि उसमें प्रॉपर रिवाइल्डिंग हो, प्रॉपर रेस्टोरेशन हो, ताकि वो स्टॉर्म्स को अब्जॉर्ब कर पाए. वी नीड अ रिटर्न टू द लिटिल बिट मोर नेचर. That's one way to protect ourselves. Well, yes, returning to nature brings me to the very beautiful chapter that Neha has written, Growing a City We Love. और ये एक तरह का प्रयास है, एक तरह का रिक्वेस्ट है फॉर अ ब्यूटिफुल सिटीज़. हमारा शहर बहुत खूबसूरत है, हमेशा से खूबसूरत है और आगे भी रहेगा. बट येस, वी हैव sane eco voices like Neha presenting a very important dimension, growing a city with love. Now, Neha, I just like to point out one simple line, towards the one simple line that you point out, that you say that we can create our own local cultures. जब दिल्ली के पर्यावरण को, हमारे इकोलॉजी को अच्छा करने का एक प्रयास है, डू यू थिंक देयर शुड बी अ डेफिनेट स्ट्रैटेजी फॉर एंटायर वन सिटी एट लार्ज, or based on your reflection, like every locality or every south, north or west Delhi should have its own plan? We can have plans depending on the local biodiversity. अब अगर आप यमुना के पास रहते हैं, east of you know that entire area near Yamuna, if you live there, तो वहाँ पे यमुना के लिए जो सही है वहाँ पे वो वेजिटेशन ग्रो करना चाहिए. अगर आप रिज के पास रहते हैं, वसंत विहार, वसंत कुंज, तो वहाँ पे रिज वाला प्लांटेशन होना चाहिए. अगर हम रहते हैं नियर स्मॉल लेक, जैसे मॉडल टाउन है नेक्स्ट टू नैनी लेक, सो वी नीड टू हैव प्रॉपर वेजिटेशन फॉर दैट लेक. नाउ लेक के अंदर भी, पानी के अंदर भी प्लांट्स होते हैं, सो वी नीड दोज प्लांट्स फॉर दैट वाटर. बेसिकली Delhi is so big, 1400 square kilometers, so we actually can have 1000 wetlands, we can have better parks. अब कभी भी पार्क होता है वो पार्किंग लॉट बन जाता है, ये तो आपने देखा ही होगा. गाड़ियाँ तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, बट वी नीड टू जोन बेटर. एंड देखिए, अभी हम पेड़ों के नीचे बैठे हैं, ये भी बहुत एक प्रेशियस चीज़ है कि हम बाहर, वी आर सिटिंग इन द ओपन एयर अंडर ट्रीज. दिस इज़ अ पाइन ट्री, दैट्स अ सेमल ट्री. लेट्स कीप दिस कल्चर अलाइव. लेट्स नॉट बिकम अ सिटी, अ मैनहट्टन, जहाँ पे हम हमेशा अंदर रहते हैं एसी में. ये बहुत अच्छा कल्चर है हमारा. और दिल्ली में जो म्यूज़ियम्स हैं, इंडिया गेट का पूरा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे लोग चल सकते हैं, मैं चाहती हूँ कि लोग और चल पाएँ. इट शुड बिकम मोर pedestrian friendly. So we need more footpaths and we need big trees on the footpaths. You know, it's so hot now and people keep saying that it's getting more hot. It is getting more hot. That's why we need big trees everywhere. So we need trees on the central verge. जो पुराने पेड़ जो गिर गए हैं storms में, we have to replant again. So in the next 50 years, as it gets hotter, we should have more trees to protect us from the worst of the rain and the worst of the heat. और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि जब भी winter आता है हर साल, एंड ऑफ दिसंबर, जनवरी में सब लोग पेड़ों के ब्रांचेस को क्यों काटते हैं? एक महीने के लिए उनको धूप चाहिए, बट एक महीने के लिए इट्स नॉट वर्थ कटिंग द होल ट्री. सो यू नो, ऑफन टाइम्स वी सी इन विंटर ट्रीज आर कट डाउन. लेट्स कीप देम स्टैंडिंग. लेट्स वैल्यू आवर ट्रीज बिकॉज हमें इनकी ज़रूरत है, इनको हमारी ज़रूरत नहीं है. बट इन अ प्लेस लाइक दिस विच इज़ सो पोल्यूटेड, विच इज़ सो हॉट, वी नीड द बिग ट्रीज. सो वी नीड टू हैव अ कल्चर ऑफ ग्रोइंग इंडियन ट्रीज इन एन इंडियन सिटी. निसंदेह प्रकृति पूजनीय है. आवर एनवायरनमेंट इज सेक्रेड एंड वी हैव टू मेक एफर्ट्स टू कंजर्व इट. एंड नेहा राइटली पुट्स इट अप, रिकॉलोनाइजेशन बाय द नेटिव. आप अपने एक प्रयास में एक अंत में एक उम्मीद आप हमें डेफिनेटली दे रहे हैं, रिकॉलोनाइजेशन बाय द नेटिव वाली बात लिखकर. नेहा, बिफोर आई आस्क यू टू रीड योर फेवरेट पार्ट ऑफ द बुक, नाउ सस्टेनेबिलिटी इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड एवरीवेयर. हर जगह sustainable. Do you think that there is a gap between theory and practice? In theory we are talking a lot about sustainability, लेकिन कथनी और करनी में अंतर है. Your observation, again as a conservation specialist, you think that there is a huge gap that needs to be bridged down? I think it's fashionable now to be sustainable and eco-friendly. It's fine, ठीक है, it's okay, it's in fashion. But if we go back to our old rituals, old customs, आपकी माँ ने बताया होगा आपको कि रैपिंग पेपर जो आता था उसको फेंकना नहीं है,
रैपिंग पेपर को फिर से यूज़ करो. कोई कपड़ा है घर में, उसको फेंको मत, उसमें से काट के make another thing. So we knew how to reduce our consumption. At the end of the day, we have to reduce our consumption, because as we produce more clothes, more books, more anything, any product, it requires energy. उसका एक footprint होता है. तो it is true that if we remember our older ways are extremely eco-friendly. अब West में now they're saying कि don't use a dryer for your clothes. Put them out to dry धूप में. ये तो हम हमेशा ही करते आए हैं. And this is a very useful thing that we do. So saving things, using them again, making sure that our footprint is less. These are things we've always known. So let's go back to that. I think it's fashionable to have all these things. मेरे घर में पैकेट के अंदर पैकेट है, and it doesn't look good. All the packets that come to my house are kept so I can use it again. And it doesn't look good, I know, but it's a good thing to do. To just save all the packets. And so even though sustainability is a big word, it sounds like unfriendly, it's a good word, and Indians know how to be sustainable. So let us remember our old ways and do that. ब्रिलियंट के प्रकृति का संरक्षण आपकी हम सब की जिम्मेदारी है, और हमारी धरोहर जो है वो हमारी सभ्यता की जो धरोहर है, आर सिविलाइजेशन ethos indeed teach us that how unique and how important it is to conserve nature. Neha, two simple quick questions and you got to be honest out here. This is going to be like a rapid fire. Conservation science and blending it with the literary genre. How interesting, easy or annoying was that? I think my readers can tell me if I've managed to blend, but I studied English in college and then I studied conservation. So I wanted to bring both things together. Conservation किताबें बहुत ही boring NCERT textbook type होती हैं. तो मैं चाहती थी कि interesting हो, stories भी हो, उसमें लोग भी बहुत interesting हैं. जो लोग इस किताब में हैं, they are extremely interesting people. There's an army colonel, there's a villager from Haryana in Mangar, there's a botanist who studies trees, and there are many other interesting people. So I've tried to bring both things together. I hope it's interesting for my readers. They can tell Brilliant. me. Okay. Neha, your message to future authors who want to take up this line of writing of conservation of nature. पृथ्वी हम सब के लिए प्राथमिक है, हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है, इसका संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है. बट जब हम इसके बारे में लिखते हैं तो ऐसा क्या लिखें कि हर काम पहले से बेहतर हो? Because always remember, a better work would only get a better standing. I think it starts with observation, just observing nature around you, even if it's a very common bird like common mena, whether it's a house sparrow. Start with observing and writing down. I'm sure you must be keeping a journal also because you're also a writer. I have read your writings. So keep a journal and then observe every day and add to it. And I think, देखिए, nature हमसे अलग नहीं है. नेचर हमसे जुड़ा हुआ है. एंड अगेन मैं कह रही हूँ, जब हम बहुत छोटे थे, वी आर दैट जनरेशन जो पार्क में खेलते थे, राइट? आई एम श्योर एवरीबडी अग्रीज हियर. आप पार्क में खेलते थे ना. अब के बच्चे क्या खेल रहे हैं पार्क में? मोबाइल. वेल, दैट्स ग्रेट. गुड़गांव में खेलते हैं, दैट्स ग्रेट. बट आई कैन टेल यू, in my neighborhood, that they're inside, the children are inside. And it's not fashionable anymore कि मिट्टी पे हाथ लगाना. And जब मैं जाती हूँ on World Environment Day, जिसकी बात हुई, ट्री प्लांटेशन जब होता है, सब ग्लव्स पहन के आते हैं कि हाथ गंदे हो जाएंगे. मिट्टी गंदी नहीं है. एंड हम जो सारे बच्चे मिट्टी में खेल चुके हैं, उनको पता है मिट्टी गंदी नहीं है. सो अगेन, दिस इज़ अनदर वे ऑफ लाइफ दैट वी आर स्लोली लूजिंग. So I will tell the authors and the writers and the thinkers of today, let's make the unfashionable fashionable again. मिट्टी में हाथ देना, हाँ, पैकेट्स को रिसाइकल करना, पेड़ पौधों को देखना और लगाना भी. That would be my message, yeah. सो ब्यूटीफुल. हमारा शहर जो है बहुत खूबसूरत है, और इससे जुड़ा जो पर्यावरण है, उससे जुड़ी जो यादें हैं, चाहे वो बचपन में पेड़ के साथ पेड़ पर चढ़ने की बात हो, या फिर बारिश में भीगने की बात हो, या फिर दिल्ली की सबसे अहम बात है कि चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर सड़कें बहुत अच्छी हैं, पेड़ बहुत ज़्यादा हैं, और इतना फॉरेस्ट कवर, चाहे वो रिज हो या बसंत कुंज हो. हमारा शहर बहुत खूबसूरत है. वी मस्ट ऑलवेज मेक अटेम्प्ट्स टू प्रिजर्व इट एंड कंजर्व
love it. Neha, even your book is very beautiful. The Wild Capital, और Wild Capital का जो cover है, मैं हापर कॉलिन्स की टीम को भी साधुवाद, बधाई, I would like to congratulate them, because वो कहता है कि दिल्ली है, दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें देखने को है, जहाँ पे पेड़ पौधे पशु पक्षी खूब सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, देखो मगर प्यार से. तो यही बात को हमें अब संजोना है, दैट येस सस्टेनेबिलिटी, केयरिंग फॉर आवर एनवायरनमेंट शुड बी आउट देयर, यू नो, विद अस इन आवर एक्शंस, थॉट्स, डीड्स एंड वर्ड्स. नेहा, ब्यूटिफुल वर्क, but read out your favorite read out your favorite pages from the book. And what makes this book so special, because it's written in a language that you and I feel that नेहा हमसे खुद बात कर रही हैं. ऐसा नहीं लग रहा कि लेखक केवल अपनी जर्नल में ये बात लिख रहे हैं, अपनी बात बोल रहे हैं. वो ऐसा लग रहा है कि वो हमसे खुद, दिल्ली क्या है, दिल्ली में कितने पेड़ हैं, कितने बेहतरीन पशु पक्षी, कितनी बेहतरीन नदियाँ, it seems that you're talking to us directly. So your favorite lines from the thing. After that होगा संवाद आप सब के साथ. Yes. So this is a section on how to make a better garden. और मेरा यही मैसेज है कि जो इंडियन प्लांट्स है हम वो लगाएं. हमारे गार्डन्स में बहुत फॉरेन प्लांट्स हैं. वी डोंट नीड फॉरेन प्लांट्स, वी नीड इंडियन प्लांट्स, क्योंकि वो ज़्यादा हार्डी होते हैं, क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, एंड दे जस्ट बेटर, दे रिक्वायर लेस. So apart from parks and gardens, road dividers can also become more biodiverse, more jungly, a little more wild, just a little more. Road dividers can have more than one layer, mimicking a natural landscape. We can have adusa. Adusa is a beautiful plant with white flowers. We could have adusa and vajradanti. Everybody knows what's vajradanti, I think. It has beautiful yellow flowers and white flowers. So we could have adusa and vajradanti growing under moringa and ber trees. We can have native grasses on road dividers which have less soil. Decolonization is recognizing the real diversity in a native Indian forest and learning how to mimic that diversity. In my pots at home, I grow yellow vajradanti with thorns. Vajradanti needs nothing, just a little bit of water every other day. I grow the blue blossom day flower, Commelina, in one pot, and I also grow Shiuli, or the Harsingar, which reaches for the sky and showers the ground with fragrant white flowers. The flowers are a journey into childhood where I used to make little chains out of the Shiuli. I also grow makoi, which is a plant with little red berries, which is loved by bulbuls and common menas. These need nothing except for just a little bit of water, and it is a joy to watch them live with no assistance, brave, independent, and pest-free. I thought I would have to give a lot of time to my garden, but instead I see I have to do nothing, just receive its generosity and its flowers. Thanks. Beautiful. So the Indian way for preserving the beautiful environments that we have as the legacy of the past for a beautiful present as well as future. Very so well put up in the book Wild Capital. आइए इसके साथ कुछ सवाल आप सबकी ओर से. Few questions from you all, and you may raise your hand, and if the questions can be जी. जी आप मेरा माइक लीजिए सर आप डॉक्टर साहब मेरा माइक लीजिए प्लीज. हो गया आगे नहीं आवाज़ आ गई. मैडम, आपने जो बहुत अच्छी किताब लिखी है एनवायरनमेंट के बारे में और दिल्ली के बारे में, जो अभी मेरे को पता लगा, मैंने पढ़ी तो नहीं है, लेकिन मैडम जो दिल्ली में इतना ट्रैफिक है उसके बारे में भी आपने कुछ लिखा है, क्योंकि ट्रैफिक से भी सारा एनवायरनमेंट, जो सरकार कहती है कि ट्रैफिक और पोल्यूशन, पेट्रोल, डीजल, ये भी सब उड़ के ऊपर ही जा रहा है एनवायरनमेंट, वही पोल्यूशन पैदा कर रहा है. डस्ट दिल्ली में इतनी ज़्यादा है, एक दिखावे के लिए हम कंस्ट्रक्शन बंद कर देते हैं जब ग्रेप 3 और 4 लगता है, लेकिन बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट पे जो असर कर रहा है, ये दो चीज़ें बहुत कर रही हैं, जो पेट्रोल, डीजल एंड डस्ट, जो इतनी चारों तरफ हमारे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा है,
तो उसके बारे में भी आपने पुस्तक में कहीं लिखा है या कुछ अध्ययन किया है आपने? देखिए, हाँ, मैंने लिखा है, अध्ययन भी किया है, क्योंकि देखिए ये एज अ सोसाइटी हमें डिसाइड करना है कि कितनी गाड़ियाँ सही है हमारे लिए। अब देखिए, हर परिवार में 4 गाड़ियाँ, हर परिवार में इतना बड़ा एसयूवी ज़रूरत है क्या? इनफैक्ट मैं और मेरे हस्बैंड इसके बारे में बात करते रहते हैं कि इतनी बड़ी गाड़ियाँ क्या हमें ज़रूरत है जो इतना डीजल और पेट्रोल खाती हैं और जिसमें एक बंदा बैठा रहता है। अब दिवाली में देखिए आप, दिवाली में जाम क्यों होते हैं? क्योंकि सब लोग ड्राइवर के साथ गिफ्ट्स भेज रहे हैं सारी गाड़ियों में, कहीं कोई जा नहीं पा रहा है ट्रैफिक जाम की वजह से। दिल्ली मेट्रो बनने के बाद भी बहुत जाम्स हैं क्योंकि लोगों ने गाड़ियाँ नहीं छोड़ी हैं। तो हमें डिसाइड करना है कि हर परिवार में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए। क्या हम एक साथ कारपूल कर सकते हैं? क्या हम अगर एक जगह जा रहे हैं एक साथ जा सकते हैं? क्या हमें ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए? आपने बिल्कुल सही कहा, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, और सिर्फ पोल्यूशन नहीं, आवाज़ भी कितनी है हॉर्न्स की। कहीं पे भी दिल्ली में जाएंगे, गाड़ी का जो हॉर्न है और एक और आवाज़ होती है मार्बल पॉलिशिंग, मतलब कंस्ट्रक्शन की। ये 2 आवाज़ें हमेशा, रात को, दिन में, संडे को, हर रोज़। तो मुझे लगता है कि जबकि ये बहुत मुश्किल चीज़ है करना, पर हमें डिसाइड करना चाहिए हर परिवार में कितनी गाड़ियाँ होनी चाहिए, और गाड़ियों का साइज़ भी हमें थोड़ा कैप करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, बड़ी गाड़ी ज़्यादा तेल लेती है, और मतलब या तो हम उसको एक डिफरेंट टैक्स ब्रैकेट में करें, क्योंकि अगर सब गाड़ी रखेंगे तो ये कभी प्रॉब्लम ख़त्म नहीं होगा। आपको याद है जब ऑड इवन हुआ था, लोग दूसरी गाड़ी ख़रीदने लगे थे ताकि उनके घर में ऑड भी हो और इवन भी हो। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, राइट? तो सॉरी, या आई नो, यस, इट्स नॉट फैशनेबल टू वॉक एनी मोर। जी, एक सवाल हाँ, यहाँ से हाँ, राइटली पुट, यस जी, माइक ये नहीं, मैं आपको हम माइक के साथ सुनेंगे। यू कैन टेक द माइक। दिल्ली साहित्य उत्सव में हर आवाज़ जो है बहुत विशेष है। जी, I'm an architect, and I've been working in the field of sustainability for 30 years now. Biggest question, what is that one thing that we can do at an individual level to reduce the climate change? The answer is to stop buying clothes relentlessly, because clothes become faded, we throw them. It was not, the clothes were not supposed to be, it was not designed to actually look good first. It was designed to cover you. But even at individual level, we are not able to stop that. All our cupboards are full of clothes. Every shirt that I make uses 15 liters of drinking water to make. And you throw it away ruthlessly just because the collar fades. If we can't stop that, I don't think we can stop climate change, no matter what you do, because everything else has to do with another person, another destination. But the first thing that we could have stopped is, what we are wearing. So what do you have to say about that? Right. So there are 2 things here. The first is about our personal consumption. The second is about having a habitable world with habitat in it. So one of my problems with architecture today is that we've forgotten our old trees, because we have buildings with basements, so you can't have trees with deep roots. So all the landscaping that's done now has palm trees and trees with very shallow roots, plumeria trees. But we actually do need trees with deep and wide roots that are good for this region. So I agree with you regarding clothes and footprint. But I also think there's another issue here, which is that we've forgotten how to plan around trees and water bodies in cities, and we have to remember it again. Yeah, I agree. Everybody's wearing a jacket and the AC is running at 22. They could have all removed their jacket and the AC could have run at 28. We need to start a movement to wear old clothes again. That's what I was saying. We have to make some unfashionable things fashionable again. Wearing old clothes again and, only wearing blazers when it's cold, like right now. There's a question from the lady. Yeah, so there's back one more there. question. Let's just take one more. Do we have time? Yes, we have. Okay. Yes, we have.
सो यस, वो भी क्या दिन थे जहाँ कूलर के साथ हम थे एंड साथ साथ एसी की ज़रूरत नहीं थी. इट इंडीड मेक्स यू मोर रिजिलियंट. या I love cooler. I love the smell of cooler. एंड द यस यस एक Yes, ma'am. सवाल, May I? ये आखिरी सवाल जी कहाँ? Yeah, there's one here and there's one there. Yes, please go ahead. Ma'am, I am from southern tip of the country, and I was said by my mother, like I'm a hardcore meat eater, like I eat fish like anything. So I'm here in Delhi for some time. So she kept saying it is not needed that you have to have fish here in Delhi. So you just have the food that is in the soil based food, like जितना Delhi soil में grow हो रहा है उसको खा लो. You don't need to have the same food. But there's a marketing, like the protein content is out there, and you have to get you have to eat that kind of food from that part of the country. But how do you look into it? Is it so true? I don't know. So you should eat as much local food as possible. So if you want to eat protein, eat it from the local butcher. Try not to eat imported and the stuff that's coming from Hyderabad or Chennai, because it has a larger footprint. It's also less fresh. Regarding protein, it's true, but a lot of vegetarians also have protein in their diet. So बेसिकली फॉर एनवायरनमेंट बेस्ट थिंग इज़ आप लोकल खाएं. आपकी माँ ने ठीक कहा है आपसे, जो लोकल चीज़ जो वहाँ बनती है या वहाँ पर जो लोकल क्यूजीन है, दैट इज़ द वन दैट इज़ बेस्ट फॉर एनवायरनमेंट. एंड एनी वे द फिश इन दिल्ली इज़ नॉट गुड, सो डोंट हैव इट फ्रॉम द यमुना. So last question, Neha. I'm sorry, I'm coming to you. She Last raised her question. hand. And I know it's a beautiful session looking at the wonderful dimension of our city, from rivers, forests, all captured so beautifully in Wild Capital by Neha Sinha. Last question. Yeah. You can take mine. इंडिविजुअल लेवल पे बहुत सारे चेंजेस हम कर सकते हैं. सोशल मीडिया पे हमें कम यूज़ करना चाहिए क्योंकि डेटा सेंटर्स भी. Can you shout? तो इवन दोज यूज अ लॉट ऑफ वाटर, तो कार्बन फुटप्रिंट तो ओवरऑल. I agree, ma'am. And in fact, Chat GPT, generative AI, सबसे ज़्यादा water thirsty है. So let's use Chat GPT less and use our brains a bit more. So यमुना देखिए पहले से बेहतर है. I'll be honest, it is a long way to go. But अगर आप असीता में जाएं, असीता बायोडाइवर्सिटी पार्क है ITO के पास, और अगर आप वज़ीराबाद बायोडाइवर्सिटी पार्क में जाएं जहाँ पे यमुना दिल्ली में आती है, things are a lot better. So it needs two things. One is we have to stop putting chemical in the water. जो discharge है हमारे factory से, that has to reduce. And the second is natural रीजनरेशन. तो इन जगहों में, इन बायोडाइवर्सिटी पार्क्स में नेचुरल रीजनरेशन हो रहा है अभी, बट वी नीड इट अलॉन्ग द होल रिवर, विच इज़ वाई आई एम सेइंग वी शुड हैव बायोडाइवर्सिटी पार्क अलॉन्ग द एंटायर रिवर. आई थिंक इट्स बीइंग डन. So let's hope for the best. Yeah. okay, so on that note, I guess we have to go. We are looking at running short of time. So Delhi is beautiful, and there's so much to discover in Delhi's ecology. Thanks to Neha Sinha for beautifully putting it down in the Wild Capital, published by HarperCollins. And जिस तरह दिल्ली खूबसूरत है, उसी तरह दिल्ली साहित्य महोत्सव भी बहुत खूबसूरत है. हम भारती दीदी को पुनः मंच से और समस्त साहित्य महोत्सव टीम को साधुवाद, शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हैं. Keep discovering the beautiful side of life, and above all, salute to Delhi Literature Festival. Thank you. Thank you, Amna, for moderating so beautifully. Thank you, You're like Neha. a professional. Thank you, Neha. Wonderful being with you. And over to you. Thank you, Ms. Neha and Dr. Ramna, for helping us see Delhi through a greener and gentle lens. Now I request Mr. Kunal Gupta to present a memento of gratitude as a small gesture of thanks for sharing her love for nature with us today. Kunal Gupta. Check. As the felicitations go, I really like to register on record the way Bharti Didi, Kunal, Ajay sir, Amit ji, Anup ji, everyone, how they work hard. Salute to you all. दिल्ली दिलवालों की है, और सबसे महत्वपूर्ण, दिल्ली साहित्य महोत्सव में खूब सारा अपार प्रेम है जो हमें लेकर आता है. बहुत बहुत धन्यवाद. ये आशीर्वाद, ये प्रेम बना रहे, हमारी यही मनोकामना है. Thank you so much.